Good morning, this is Shubham and today we are going to know about the poem Puli, written by George Herbert, who was born on 1593 and died at 1633. Right. So, he was one of the very famous poet. He used to write mythological poem, religious poem and imaginative poem. Right. So, according to his aspiration or as per his metaphysical writing, he was also the metaphysical writer. Means he used to write metaphysical poem. Metaphysical means mythological. Mythological depending on what we can say, depending on nature, God, evil, concept, basic concept, everything comes under that. The philosophy content of this, right? So he used to write a metaphysical poem. We can even say that imaginative regarding God and nature, natural concept of nature. Okay. So let us move toward it. As we have seen that George Herbert is a religious poet. So he used to basically write maximum poem on the basis of the topic like God, religion, power, magic, nature. Okay. Now let's move towards the poem. The Puli. What do you think? What does thing come to your mind when you heard the word pulling? Pull. As we have seen that, हम देखते हैं कि कुएं से जब पानी निकाला जाता है, किसकी सहायता से निकाला जाता है? पुली के. Pulley, which is rotational in shape, and when we pull the water from the well, it revolves. It is known as pulling. In same manner, we, the human being, are being pulled by whom? By God. जिस तरीके से हम कुएं से पानी निकालते हैं, सेम उसी तरीके से भगवान हमको भी पुल करते हैं. नॉट फॉर बैड थिंग, जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ कनेक्शन, गॉड इज पुलिंग अस. राइट. सो लेट अस सी व्हाट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम से. पहले स्टैंजे का अर्थ क्या है? When the God first made the man, having a glass of blessing standing by, let us, he said, pour on him all he can. Let us burn his chain, which displays the light and contract into the span. In the first stanza of the poem, the poet says that, the George Herbert says that, when God created this world, at that time, the first thing which has been created by God was the brilliant creation, that is human being. सबसे बड़ी बुद्धिजीवी जो पृथ्वी पर के होते हैं वो हम इंसान हैं. तो भगवान की सबसे पहली रचना हम हैं. वी आर द गॉड क्रिएशन. वी ह्यूमन बीइंग, वी द मैन आर द गॉड क्रिएशन. तो व्हेन गॉड मेड अस, जब भगवान ने हमें बना, भगवान ने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना हम हर चीज निछावर कर दे, क्यों ना हम हर कुछ पोर कर दे, उड़ेल दे. Everything we should just bless. तो भगवान ने सोचा कि जब मैं मनुष्य को बना रहा तो मनुष्य को इतना सुंदर बनाना है कि उसमें कुछ भी कमियां ना निकले, उसमें कुछ भी खामियां ना निकले. कोई ये ना बोले कि ऐसा वैसा. There should not be any what we can say, उसके ऊपर कोई बुरी बात ना निकले. इस तरीके से भगवान ने हम सबको इस तरीके से बनाया ताकि कोई खोट निकाल ना सके और मैक्सिमम ब्लेसिंग, पावर, राइट्स, एवरीथिंग ही हैड. बट सी, जब ईश्वर ने पहली बार मनुष्य को बनाया, इस ईश्वर के पास एक कांच का पात्र था जिसमें ब्लेसिंग भरी थी. ईश्वर ने कहा कांच के पात्र में से कांच के पात्र में जो ब्लेसिंग है वो हम मनुष्य के नाम प्राणी के ऊपर उड़ेल देंगे, निछावर कर देंगे. जब भगवान ने हमारी रचना की तब भगवान ने सोचा कि कुछ भी चीज कम ना पड़े, सब कुछ इन्हें दे देते हैं. वरदान में जब हमारी रचना हो रही थी उस समय भगवान ने दिल खोल के हमें बनाया और उसी समय भगवान ने दिल खोल के बेचे सब कुछ दे दिया. दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट स्टैंजा. लेट अस सी सेकंड स्टैंजा. So the strength made a way. The beauty flowed, the wisdom on a pleasure. When almost all was out, God made a way, perceiving that alone of all had the treasure rests in the bottom lake.
जब भगवान ने सब कुछ बनाया, when God had made everything, but suddenly God stopped. मीन्स भगवान के पास वो कांच का ग्लास था जिसमें पूरी ब्लेसिंग्स थी. So when God was pouring everything on the human being, at that time he stayed, वो रुक गए. और जैसे हमें पता है जब हम चाय पीते हैं या पानी पीते हैं, यूजुअली हम जब चाय पीते हैं तो कुछ क्वांटिटी की चाय हम उस कप के अंदर छोड़ देते हैं. इन सेम मैनर गॉड हैव आल्सो लेफ्ट few of the basic things that. भगवान के कहने का तात्पर्य यह था कि सब कुछ ना देते हुए कुछ तो मतलब कुछ चीज रह गई, और वो चीज क्या थी वो देखेंगे. सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्य को शक्ति दी, फिर ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर दिया गया, सब कुछ पूरा उड़ेल दिया गया. उस ग्लास में मनुष्य के ऊपर गॉड के द्वारा सब कुछ खत्म हो गया था, हो ही रहा था. तब गॉड रुक गया, मतलब जब सब कुछ हमें मिल चुका था, जब गॉड पोर करे तो उसी समय गॉड रुक गया. और रुकने की वजह से जिस प्रकार हमारी चाय पीने के बाद थोड़ी चाय बच जाती है, उसी प्रकार उस पात्र के अंदर, उस कांच के ग्लास के अंदर कुछ तो भी ब्लेसिंग्स रह गई, कुछ तो भी पावर रह गई. वो क्या है? इस कारण कुछ उस कांच के बॉटम में रह गया था. जिस तरीके से उस कांच के बॉटम में कुछ हिस्सा रह चुका था जो भगवान ने हमें नहीं दिया था, और ये वो हिस्सा था जो भगवान ने जानबूझकर नहीं दिया था. एंड दिस वाज दैट पार्ट दैट गॉड डोंट वांटेड टू गिव अस इंटेंशनली, जानबूझकर नहीं देना था. लेट अस सी द थर्ड स्टैंजा. For if I should, he said, bestow the children also on my creature, he would adore my gift instead of me, and rest in nature, not the God of nature. So both should be losers. Let us see what God says in third stanza. भगवान कह रहा है अगर मैं सब कुछ दे दूंगा तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एंड उसकी वजह से डॉट में भी बैड थिंग्स में भी हैपन. एंड ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान हमें सब कुछ दे दे, इस भगवान की दया के कारण हम भगवान की प्रार्थना, याचना, प्रेरणा, ये वर्शिप करना हम सब भूल जाए. इस वजह से भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा कि आखिरी गहना रह गया था, ये आखिरी गहना रह गया था उस ग्लास के अंदर, जो ब्लेसिंग का पार्ट था, जो उस ब्लेसिंग का पार्ट था जो सब हमको मिल चुकी है. तो भगवान ने कहा अगर मैं सब बचा हुआ हिस्सा दे देता हूँ, मीन्स अगर मैं सब कुछ जो भी बचा हुआ हिस्सा था ब्लेसिंग का वो भी दे देता तो क्या होगा? मेरा वक्त मुझे कम और मेरी तौफों की ज्यादा पूजा करेगा. मतलब भगवान का कहना है कि हम जो ह्यूमन भी होंगे तो भगवान की पूजा कम करेंगे और उनके तौफों की पूजा ज्यादा करेंगे, या फिर हम भगवान को भूल भी जाएंगे. और वो मेरी आखिरी चीज सुख चैन है जो ईश्वर मनुष्य को नहीं देना चाहता. और जो आखिरी चीज जिसके बारे में हम पूछ रहे थे कि वो क्या हो सकती है, क्या है, तो वो है सुख चैन, दैट इज सैटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि, शांतता. तो भगवान भी यही चाहता है कि इस कमी के कारण उनके भक्त उनको नहीं, इस कमी के कारण उनके भक्त उनको पूजेंगे तो सही. अदरवाइज अगर भगवान ने सब दे दिया तो भक्त तो सेल्फिश हो सकते, ह्यूमन बीइंग सेल्फिश बन सकता है और फिर वो उनको पूजना भूल जाए और उनके भक्त उनकी पूजा नहीं करेंगे तो मैं और मेरे भक्त दोनों लूजर कहलाएंगे या ठहराएंगे. मीन्स गॉड क्रिएशन और ह्यूमन बीइंग दोनों को लूजर कहलाएंगे. मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि अगर भगवान ने सब दे दिया और ह्यूमन बीइंग सेल्फिश हो गया, ह्यूमन बीइंग ने भगवान की प्रार्थना करना छोड़ दिया या गॉड की गिफ्ट की ज्यादा पूजा की एज कम्पेयर टू गॉड, तो गॉड और ह्यूमन बीइंग दोनों लूजर हो जाएंगे. क्यों लूजर हो जाएंगे? क्योंकि इससे ये होगा कि जिसने सब कुछ दिया है ये उन्हें ही भूल जाएंगे और सेल्फिश हो जाएंगे. इस वजह से गॉड और उनके भक्त, गॉड और ह्यूमन बीइंग दोनों लूजर कहलाए और दोनों लूजर ना कहलाए. इसलिए भगवान ने जो सुख चैन नाम की चीज है, जो सैटिस्फैक्शन नाम की चीज है, जो एक्चुअली रेस्टलेसनेस है, वो नहीं दिया. रेस्टलेसनेस नहीं दिया, सुख चैन भगवान ने जानबूझ के छीन लिया, ऐसे भी कह सकते हैं या पोएट कह रहे हैं.
आखिरी स्टैंजा में देखिए, Yet let him keep the rest, but keep them the lightning restlessness. Let be the rich be weary and that last, if the goodness lead him not, yet the weariness may toss him to my breast. भगवान कहते हैं इन दिस लास्ट stanza, God is saying that, भगवान कहते हैं इस आखिरी चीज को रहने दो। यदि बेचैनी अगर ह्यूमन के पास रहेगी तो ये मेरे पास आएंगे और तब मैं इन्हें अपने गले से लगा दूंगा। उसी भांति जिस भांति पिता अपने बच्चों को अपने गले से लगाता है, सीने से लगाता है, उसी भांति मैं अपने भक्तों को या मेरे बच्चों को, जिनका मैंने क्रिएशन किया, जिस ह्यूमन बीइंग को भगवान ने बनाया, उन्हें वो कष्ट पकड़ लेंगे अपने बच्चे की भांति और अपने गले से लगा लेंगे। So the moral of the story is, अगर हम भगवान के बच्चे हैं, अगर हम भगवान का क्रिएशन है, तो भगवान को भी किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं भूलना चाहिए और मनुष्य को इस बेचैनी की और मनुष्य को जो भगवान की चीज नहीं दी है वो चीज है बेचैनी, और इस बेचैनी के ऊपर ये पूरी पोयम बेस्ड है। पोयम में बताया गया है कि इस बेचैनी की वजह से ही हम भगवान को प्रे करेंगे। I hope you like my poem. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.